So basically what we had found out was P3. What was the value? So 390.32. 390.32. Okay. And the hydrostatic draft at waterline number 3. 4.803. 4.803. Okay. Now we are going on to the second part of the question. The second part is initial dock water height is 6.5 meters. Total fall in water line is how much? 2 meters. 2 meters. 1 plus 1, 2 meters is the total fall. Therefore, final dock water height will be 4.5 meters. Final dock water height will be 4.5 meters. So this is my dock water height. Now look at this water line and look at this water line. What can you make out? It will touch the blocks forward and on. Hmm? Give me a better answer. I need a better answer. What do you make out of this? इसका क्या मतलब है? That we are between somewhere between waterline number 3 and waterline number 4. Yeah, basically waterline number 3 is over. It got over at 4.803. I have gone below that. So waterline number 4 is occurring between number 2 and 3. No, this is totally wrong. maximum negative में जाएगा. No, you're talking totally wrong now. Hence, critical period is already over. Vessel is sitting all over on the blocks. Vessel is sitting all over on the blocks. Is this line okay with everybody? Yes, sir. You have already passed waterline 3. Vessel is already all over on the blocks. Critical period is already over. If critical period is already over, can I use the long formula? No, sir. No, sir. Oh, No, can I sir. can I use the TC wala formula? P3 is equal to TC into MCTC upon LCF. Can I use that formula? No, sir. I cannot use.
So what is the formula to find P for this water line? Sir, by V loss. No, you check again. हमने वो टेबल बनाया था. Mean rise. Sir, mean rise वाला. Correct. Mean rise. Mean rise वाला. बिल्कुल सही. So हमें वो mean rise से निकालना पड़ेगा P. So initial hydrostatic draft. Okay, before I come to this. All right. So the final dock water height is 4.5 meters. Critical period is already over. Vessel is sitting all over on the blocks. Can you tell me what will be my final draft forward and aft? ही रहेगा ना. Correct. बिल्कुल ठीक. Final drafts forward 4.5, aft 4.5. ये समझ में आया कि नहीं? Is this line okay with everybody? Sir. And Yes, sir. the final dock water height is also 4.5. The final hydrostatic draft is also 4.5. Hydrostatic draft is also 4.5. So, let me now come. Initial hydrostatic draft. कितना था? $4.3. Initial hydrostatic draft. चेक करो. 4.803. नहीं, इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट शुरू से जब डॉक में एंटर किया जहाज. 5.063. This part, please remember, second part is to be treated as an independent question, not connected to the first part, okay? We are talking about a total fall of 2 meters from initial. Is that okay? Initial hydrostatic draft is 5.063. Final hydrostatic draft is 4.5. How much is the mean change of draft or mean fall or mean rise? 0.563. 0.563 meters is equal to 56.3 centimeters. This is equal to P upon TPC is equal to P upon 15. Therefore, find out the P. .844.5. This is the total P which will come. This 390 is a part of this 844, mind you. अगर 1 मीटर फॉल होता है तो हमारा P जो था वो 390. नहीं, वो 390 नहीं था. जो फर्स्ट मीटर, जो फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था,
तो उसके लिए जो लॉन्ग पी आया था लॉन्ग फॉर्मूले से, दैट वाज 195 195.71 195 आया था। अगर 195. अगर 1 मीटर का फॉल होता है, अगर 1 मीटर का फॉल होता है तो 195 आता है। उस वक्त ड्राफ्ट हमने जो निकाले थे वो थे। अगर ड्राफ्ट 4.8 हो जाता है तो मेरा पी बनता है 390, और उसके बाद भी पानी और गिरता है, दैट मीन्स द टोटल इज 844 पी। सो ऑल योर 390, 195 all are inclusive in this. They are a part and parcel of this 844. It is a sequential fall which is happening. इनिशियल इतना था ट्रिम, उसके बाद थोड़ा पानी गिरा, फिर और गिरा, फिर वाटर लाइन 3 आ गई, फिर पानी और गिरा, एंड टोटल पी बना 844। टोटल फॉल 2 मीटर पानी। ड्राफ्ट फॉरवर्ड नाफ 4.5। इसके बाद जो भी पानी गिरता रहेगा वो एट द रेट ऑफ पी बाय टीपीसी होता रहेगा, दैट्स ऑल। कोई चेंज ऑफ ट्रिम नहीं हो रही है। ट्रिम जो चेंज होनी थी वो क्रिटिकल पीरियड के दौरान हो गई। इज दैट ओके? एनी डाउट्स? ओके। अगर पी आ गया है तो आप वी लॉस निकाल लो, फिर आरजीएम निकाल लो। How much is the V loss? 0.870. Yeah, I'm getting 0.871. I don't know. Is everybody getting the same? हाँ सर, वन Yes, भी sir. ले सकते बिकॉज राउंड ऑफ में फोर्थ फिगर 5 आ रहा है। हाँ जी। राउंड ऑफ में फोर्थ फिगर 5 है तो थर्ड फिगर 0 है, तो उसको 1 भी कर सकते हैं। अगर 5 है तो फिर 1 ही होगा ना। 1 is always taken as to the next number. 5 is always taken to So the next mine number. is coming 0.87048. Correct. Absolutely right. So अब इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे, So it will 0.871. है ना। सो आरजीएम कितना आता है? सर नेगेटिव 0.271। करेक्ट। Everybody is getting the same answer? यस सर। यस सर। Okay. So this finish of your question. This is what your RGM is going to be. This is your P. This is your draft forward and after. 4.5, 4.5. Your RGM is going to be negative 0.271. That means मैं कौन सी वाटर लाइन में आ गया हूँ? फिफ्थ नहीं, 4 and 5 के बीच में। That means water line 4.5. 4 and 5 के बीच 4.5. Because 4 में मैं 0 हो गया था, जो कि मुझे पता नहीं है कब, बट आई नो कि आरजीएम 0 हो जाता है 4 में, बट उसकी मुझे जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में।
एंड उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो दैट मीन्स आई एम ऑन 4.5 नाउ. इज दैट ओके? Yes, sir. Okay, sir. All right. So now you take two questions for homework to practice this question. Okay, sir. All right. Same question, same data. I repeat, same question, same data. Find the RGM and the drafts fore and aft when number one, waterline falls by 1.65 meters, 1.65 meters. Second part, waterline falls by another 15 centimeters. Waterline falls by another 15 centimeters. This is question number one. Question number two. First part, waterline falls by 1.60 meters. Second part, waterline falls by another 10 centimeters. I am intentionally, what I am doing, basically you must have gathered कि मैं कर क्या रहा हूं. I am taking you very close to the waterline 3 mark, basically. You could be just before or you could be just after. That is what I'm doing. The idea is so that in some question where you are given only one part, you're not given the second part, you should not get confused. You should know कि सपोजिंग मैं आपको खाली एक क्वेश्चन में 1.65 दे दूं, तो अब क्या करोगे आप? चेक तो करना ही पड़ेगा, राइट? P3 निकालना ही पड़ेगा. फॉल से भी चेक कर सकते हो, लाइक व्हाट यू सेड यस्टरडे, तो उससे भी कर सकते हो. इफ यू आर ओके विद इट, आई एम फाइन. बट आई वांट यू टू डू अ चेक विच एवर वे यू डू इट, इधर विद P और विद ड्राफ्ट्स और विद बोथ, जैसे भी आप समझ सकते हो. आइडिया इज टू गैदर कि जब फॉल होती है तो मैं कहां आ रहा हूं, मैं 3 को पार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं. अगर 3 को नहीं पार करता तो मैं 2.5 पे हूं, और अगर 3 को पार कर जाता हूं तो मैं मीन राइज वाले पे आ गया, basically. And you should be able to use the correct P formula. Got it?
Is that okay? Yes, sir. यस सर. सर इसमें जैसे एक तो बेसिकली जैसे फर्स्ट में 1.65 मीटर पानी कम हुआ है Correct. डॉक वाटर. तो सर जब हम यूं कैलकुलेट करते हैं कि अगर फिर डॉक वाटर हाइट हो जाती है 4.85 और हमारी फॉरवर्ड 6.5 माइनस minus 1.65 1.65 कितनी बनी? 4.85. 4.85. तो सर और फॉरवर्ड ड्राफ्ट हमारी 4 मीटर है तो फिर वाटर लाइन 3 पे तो हम वैसे आए ही नहीं अब तक. वो तो ऐसे ही पता चल जाता है. नहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, सर ये ये गलत फॉर नहीं होएगा ऐसा. ये गलत हो गया। ये जो आपने बोला ना फॉरवर्ड ड्राफ्ट इज 4 मीटर, हम्म. अच्छा तो बट वो फिर ट्रिम भी तो वो कम हो तो भाई जाएगी वो. भाई ऐसा है ना, मेरा ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट 4 मीटर है, लेकिन जब ये पी इधर पुश कर रहा है तो मेरा बॉल नीचे भी तो जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर तो वो भी वो आ तो जाएगा. मेरा फॉरवर्ड का ड्राफ्ट 4+TF हो जाएगा ना, समथिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो मेरा आगे का ड्राफ्ट शायद 4.85 पार कर जाए, पता नहीं मुझे। गेट द पॉइंट। यस सर तो सर. आगे को देख के जस्ट जस्ट मैं आगे को देख लूं और मैं ये डिटरमिन कर लूं कि बॉर्डर लाइन 3 पार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो मिस्टेक हो जाती है, वो टेक्निकल मिस्टेक है। वो मत देखना कभी भी। इसीलिए मैंने दो तरीके बता दिए, एक पी से हो जाता है और एक ड्राफ्ट से। somebody had mentioned yesterday, तो ड्राफ्ट से जिसने बोला था वो बिल्कुल ठीक था, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से, और हाफ ड्राफ्ट से कंपेयर कर रहा था वो, सो दैट वाज फाइन, सो दैट वाज परफेक्ट। तो अगर उससे कर सकते हो तो वो कर लो, बट बेस्ट है पी निकालो, उसमें कभी गलती होती नहीं है, और लॉन्ग फॉर्मूले का पी निकाल लो, क्योंकि चाहिए तो है। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी बता दिया है कि 4.85 है, और उसका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट फॉर वाटर लाइन 3 कितना है? 4.803। तो इसका क्या मतलब है? अभी टच नहीं हुआ है अभी टच 2 नहीं और हो, 3 के बीच में. अभी 2 और 3 के बीच में। तो मुझे पी निकालना है, तो पी कैसे निकालोगे? Water line 2.5 वाला फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूले से, लॉन्ग फॉर्मूले से, 2.5 वाले से। तो लॉन्ग फॉर्मूले से आप निकालोगे पी, वो आपका करेक्ट पी होगा, और वो 390 से कम होगा, माइंड यू। वो 390 से कम होगा। एग्रीड ऑन दिस? राइट सर। चलो, दूसरा पार्ट, 1.65 प्लस 15.15, तो 1.678, 1.8 हो गया, 1.8। तो 6.5 माइनस 1.8, 7 हो गए. 4.7 हो गया, मतलब पार हो गया, नाउ यस. पार हो गया। 3 पार हो गई। अगर 3 पार हो गई तो पी कैसे निकालते हैं? मीन राइज वाले से. मीन राइज सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मीन रेस। सो दैट इज हाउ यूल डू इट। और दूसरा वाला, इसमें 1.6 आ रहा है। अब ये ट्रिकी है, ये मैंने ट्रिक डाल दी है इसमें। तो ये कितना बना? 0.9. 4.9। तो कौन सी वाटर लाइन है? कौन सी वाटर लाइन है? between 2 and 3. बिटवीन 2 बिटवीन, एंड 3 सर. एब्सोल्युटली राइट, बिटवीन 2 एंड 3। सो वो निकाल लोगे लॉन्ग फॉर्मूले से। अनदर 10, मतलब 1.7। अब शुरू होती है कहानी। ये कौन सी वाटर लाइन है?
ये तो almost After Just After. below Sir, 3. after three. Just below 3. 3 Just below 3. millimeter, 3 millimeter below 3. Agreed? yes sir. यस सर, वो मेन राइज वाला लग जाएगा। Main resistance. So इसका जो आपका पी आएगा वो 390 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो मैंने वो टच एंड गो वाला करवा दिया आपको इसमें। So supposing in a question somebody gives you directly a fall of 1.72, you should know how to handle it. Or 1.69, you should be able to handle it correctly. Get it? समझ आ गया कैसे? How it's a touch and go kind of a thing. यस सर, बेसिकली तीनों से देख लेंगे कि ड्राफ्ट वाटर लाइन 3 पे क्रॉस हो रही है नहीं हो रही है, देन वी विल चूज अ सिलेक्टिव पी फॉर्मूला तीनों फॉर्मूले में से। 3 फॉर्मूले हैं, चूज करना है कि कौन सा यूज करूं। Got it? यस सर। Yes, sir. So इसको प्रैक्टिस करना है, ये दोनों क्वेश्चंस को। प्लीज डू प्रैक्टिस दिस। ठीक है? यस ओके। ओके। अब सपोजिंग ये जो ब्लॉक था यहां पे, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं विद अ रॉक। तो ये क्या बन गया? सर किससे रिप्लेस किया इसको? रॉक। ग्राउंडिंग। ओके ओके सर। रॉक से रिप्लेस कर दिया। तो ये बन गई इसको, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे कांटेक्ट हुआ, इसको एक नाम दे रहा हूं मैं जी। तो ये मेरी बन गई ग्राउंडिंग। अब जो मेरा पी एक्ट करेगा वो थ्रू द रॉक होगा। इट विल पियर्स थ्रू, it will not pierce through, sorry, it will push through my stern frame in an upward manner, and ये मेरा ड्राफ्ट है जब मैं ग्राउंड किया। तो ये कहलाता है आइसोलेटेड रॉक। तो वी आर ग्राउंडिंग ऑन अ आइसोलेटेड रॉक। आइसोलेटेड रॉक मतलब एक लौता रॉक, एक ही पीस पे मैं ग्राउंड कर रहा हूं। तो इन द केस ऑफ अ ग्राउंडिंग, generally vessel always gets grounded on a falling tide. Okay, generally vessel always gets grounded on a falling tide. जब टाइड गिर रहा होगा उस वक्त मैं ग्राउंड करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि अगर राइजिंग टाइड में मैं ग्राउंड करूंगा तो थोड़ी देर के बाद मैं फ्लोट ऑफ कर जाऊंगा। जैसे ही टाइड थोड़ा सा और आएगा, 1 सेंटीमीटर 1 इंच और पानी बढ़ा, मैं तो फ्लोट कर जाऊंगा।
तो जनरली हम लोग जब ग्राउंड करते हैं तो हम फॉलिंग टाइड में ग्राउंड करते हैं, जिसको कहते हैं ना एबिंग टाइड, टाइड इज एबिंग। तो अब समस्या क्या है ग्राउंडिंग में? एक समस्या तो ये है कि मेरा साइन ऑफ तो पक्का है, पर उसके अलावा अब पी एक्ट कर रहा है जहां से भी मैं ग्राउंड किया, एंड एज अ रिजल्ट जैसे जैसे टाइड नीचे गिरेगा वैसे वैसे मेरा पी बढ़ता रहेगा, एंड मेरी चेंज ऑफ ट्रिम भी होती रहेगी। माई शिप विल कीप डांसिंग अराउंड द पी, अराउंड द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग। जी, उसके उसके अबाउट डांसिंग करेगा मेरा जहाज। और जैसे जैसे पी बढ़ेगा मेरा आरजीएम घटेगा। ठीक है। अब जब मैं ग्राउंड हो जाता हूं तो मेरे को दो टेंशन है। एक टेंशन ये है कि मेरा आरजीएम घट रहा है, और अगर मेरा आरजीएम इस दौरान, इस फॉलिंग के दौरान नेगेटिव हो जाता है, तो इमेजिन माई सिचुएशन, पीछे से मैं टंगा हुआ हूं पत्थर के ऊपर और मेरा जीएम नेगेटिव हो गया है, तो आई विल कैप्साइज एंड आई टॉपल ओवर स्ट्रेट। विद इन नो टाइम आई टॉपल ओवर बिकॉज आई बी अनस्टेबल। सो एज ऑफिसर हमारा रोल क्या है? टू कैलकुलेट वन, तो लो वाटर टाइड टाइमिंग, ये जब लो वाटर आएगा, लोएस्ट लो वाटर, तो उस वक्त टाइम क्या होगा, नंबर वन। उस वक्त टाइड क्या होगा, नंबर टू। और नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट, उस वक्त मेरा आरजीएम क्या होगा। एम आई गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर तो मैं पॉजिटिव हूं तो मैं टॉपल ओवर तो नहीं करूंगा, कम से कम इतना तो मुझे पता है। बट अगर मेरा आरजीएम नेगेटिव हो रहा है तो देन आई हैव टू डू माई कैलकुलेशंस एंड आई हैव टू मेक श्योर that my RGM is positive at that time. I have to try and float the vessel off with the help of tugs and whatever I call shore. So ये पहला डेंजर है ऑफ ग्राउंडिंग। सेकेंड डेंजर ऑफ ग्राउंडिंग इज जैसे जैसे टाइड गिरेगा वैसे वैसे पी बढ़ेगा, और ये मेरा कहीं रॉक मेरे को पियर्स करके होल ना बना दे मेरे। और अगर इसने मेरा होल बना दिया तो देन आई हैव गॉट अ केस वेरी स्टैंड माय स्टेबिलिटी, देन इट्स अ केस ऑफ डैमेज स्टेबिलिटी। बिल्जिंग हो गई है, फिर हम वो फेज टू की बातें करेंगे, वो फेज टू में। सो ये दो मेरे डेंजर्स हैं ऑफ ग्राउंडिंग। ठीक है। अब समझने की करते हैं कोशिश फॉर्मूले। सिंस वेसल is going to be, please put your mics on mute. Please put your mics on mute. So since I am grounded here, therefore my vessel is still in critical period and will always remain in critical period throughout the grounding. My vessel is going to be in critical period. So what is the formula to use? The formula to use is the P 2.5 formula, which is P upon TPC plus P into LCF स्क्वायर था, यहां पे हो जाएगा GF स्क्वायर ओवर MCTC into LBP is equal to fall in water line after contact or change in draft at the point of contact. And this is in, of course, centimeters we had calculated.
Basically, what has happened? This is my GF, which was LCF in that case. उसको अब मैंने नाम दे दिया GF. क्यों दिया GF? क्योंकि ये मेरी रॉक यहां नहीं रहेगी, ये रॉक तो कहीं जा सकती है, ये इधर आ जाएगी. अगर ये इधर आ जाएगी तो बेसिकली मेरा लीवर जो है वो कम हो जाएगा. सिंस मेरा लीवर कम हो जाएगा तो मेरा ये फॉर्मूला GF कम हो जाएगा बेसिकली. इज दैट ओके? दिस पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग कुड बी हियर ऑल्सो, आगे भी हो सकता है ये. यस सर. तो तब भी ये GF ही रहेगा. अच्छा, एक फर्क और है. सपोजिंग माई पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग इज फॉरवर्ड, इधर है, तो अब मेरा P आगे से एक्ट करेगा. अब मेरा P आगे से एक्ट करेगा. ये मेरा G है, ये मेरा P है. सो GF ये रहा. सो फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है. उसके बाद PC आप निकाल लोगे, चेंज इन ट्रिम. अब जब TA की बारी आएगी और TF की बारी आएगी, इसका जो TF का साइन क्या होगा? माइनस, पीछे एब्सोल्युटली राइट. ये मेरे जहाज को ऐसे पुश कर रहा है. सिंस ये मेरे जहाज को ऐसे पुश कर रहा है तो TF का साइन इसका माइनस होगा, इसका TA का साइन प्लस होगा. प्लस. इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? ये समझ आ गया साइन का चेंज? यस सर. यस सर. ओके. सर ये G का क्या बताया था सर आपने? G is the point of grounding. ओके पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग. G is the point of grounding. G is the point जहां पे वो रॉक सिचुएटेड है. So basically, depending on the positioning of the rock, which will be given to you in the question, you will be able to imagine कि TF और TA का साइन क्या होने वाला है जब ड्राफ्ट्स का टेबल बनाओगे. Got it? यस सर. Okay. अब एक और केस देता हूं. सपोजिंग आपने ग्राउंडिंग करी बिल्कुल बिलो सेंटर ऑफ रोटेशन, बुल्सआई की ग्राउंडिंग करी, पिन पॉइंट कैलकुलेट करके करी कि भैया मेरे को तो सेंटर ऑफ रोटेशन के नीचे ही ग्राउंड करना है. ठीक है. व्हाट विल बी योर TC? चेंज इन ट्रिम. 0 sir. Is that okay with everyone? Yes, sir. यस Change सर. in trim will be 0 because GF is 0. It's like discharging cargo from center of rotation. जो भी आपकी इनिशियल ट्रिम थी वही फाइनल ट्रिम है. ये कंपोनेंट पूरा 0 हो जाएगा, बस खाली मीन राइज होगा. बस जो भी फॉल होगी वही मीन राइज होगी. ये कंपोनेंट पूरा 0. So TC will be 0. Therefore TF, TA will be 0. So if your initial trim was 1 meter stern, when tide falls, your final trim will also be 1 meter stern. Is that okay? Is that okay? यस सर. Yes sir. Okay. So ये है सारी राम कहानी ग्राउंडिंग की. इसको कल करेंगे. ये मैंने थ्योरी बताना जरूरी था ताकि पहले थ्योरी समझा दूं.
कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये सेंटर ऑफ फ्लोटेशन डिपेंड करता है वाटर प्लेन एरिया पे। बिल्कुल तो ठीक। जब वाटर लेवल चेंज होगा लो टाइड या हाई टाइड तो उससे सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो होना वो चाहिए बिल्कुल। पॉइंट पी के जस्ट अबव ज़रूरी नहीं लाई करे, लेकिन फॉर सॉल्विंग पर्पस वही लेके चलेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इस वक्त, यस सर। उसमें डेटा इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके। तो इसलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी सेंटर ऑफ रोटेशन वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस वक्त। लेकिन आगे जाके जब मैं हिंशिप में घुसूंगा तो उधर में सेंटर ऑफ रोटेशन यू लाइक व्हाट यू सेड वो बदलेगा। ओके सर। तो वो बदलने वाला है। बट अभी जो है, अभी वो जो है सेंटर ऑफ रोटेशन कांस्टेंट रह रहा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके सर। ठीक है। सो प्लीज जो ये दो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं इनको प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये फॉल का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए दिमाग में कि जब भी फॉल आएगी कैसे हैंडल करनी है उसको। ग्राउंडिंग के केस में कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंडिंग के केस में मैं हमेशा ही वाटर लाइन 2.5 में रहूँगा, तो हमेशा ही हमारा वो लॉन्ग फार्मूला रहेगा। बात ही खत्म हो गई। ओके चलो, सी यू, बाय। Thank you, Thank you, sir. sir.